Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the detailed structure and types of cartilage. Let's start. Students, the second part of the subtopic 2.12.1, that is cartilage. So cartilage, it's the type of connective tissue. As I have told you before, it is a type of connective tissue. It is harder, but it is less harder than a bone because bone is the hardest connective tissue. Clear? ये भी hard है, लेकिन bone से थोड़ी less hard होती है. So type of connective tissue that is strong but less strong or hard than bones. They are present at particular places only. बॉडी में हर जगह पे मौजूद नहीं है कार्टिलेज, ये सिर्फ मखसूस जगहों पे मौजूद है. They are flexible, a little bit flexible. इनके अंदर flexibility अल्लाह ताला ने रखी है. They have no blood vessels. जो cartilages हैं, they are devoid of blood vessels. तो blood vessels नहीं है, तो क्या ख्याल है फिर इनमें nutrients और oxygen वगैरह ये कैसे पहुंचता है? So the process is diffusion. जब ये सारा कुछ नहीं है, blood vessels नहीं है, so all the things they move along by the process of diffusion, and that is the reason they heal very slowly. इसी वजह से चूंकि blood vessels नहीं है, तो nutrients इतनी आसानी से यहाँ पहुंच नहीं पाते, तो diffusion it's a time taking process. ठीक है? So that is why अगर cartilage खराब हो जाए तो बहुत देर लेती है उसको heal होने में. So here is a diagrammatic representation of cartilage. So there is an upper connective layer tissue, layer of around the cartilage. Clear? So it is a layer of connective tissue which is called as perichondrium. Peri means around and chondrium means around the cartilage. So the cartilage matrix is covered by dense connective tissue. जो cartilage का अंदर जो matrix है वो किससे covered है? Dense connective tissues के साथ. It is covered by dense layer of connective tissue. CT stands for here connective tissue called perichondrium. ये ऊपर भी perichondrium, नीचे भी perichondrium और दरमियान में क्या है उसका? Matrix. So all this is the matrix. और इस matrix में देख सकते हैं there are chondrocytes. Chondrocytes they are the living cells of the cartilage. याद रखिएगा. They are the living cells of the cartilage or mature cartilage cells. So they are also known as mature cartilage cells. Clear? और they are present in a fluid filled space. ये छोटे छोटे ये gaps होते हैं जिनके अंदर ये मौजूद है. So that is called as lacuna. उन spaces को कहा जाता है lacuna. There is a fluid filled space in which the chondrocytes are present. ये इसके इर्द गिर्द जो है वो space है, इसके छोटे छोटे gaps है, इनको lacuna कहा जाता है. These are fluid filled. इनके अंदर मौजूद है ये आपको जो pink color के नजर आ रहे हैं, these are chondrocytes. Clear? और ये इनके इर्द गिर्द in addition to lacuna there are some fibers, as you can see. ये blue color के जो नजर आ रहे हैं, these are all the elastic fibers. These are elastic fibers. So that is a little bit structure of the cartilage. Now the cartilage, it is divided into three major categories. So three major categories involve hyaline cartilage, fibrous cartilage and elastic cartilage. तो इसको मैं tabulated form में आपके सामने present कर रहा हूँ ताकि इसको आपको comparative study में आसानी रहे. चूंकि मेरा ये मानना है और मेरा ये experience है कि जो भी टॉपिक आप कंपैरिजन की फॉर्म में याद करने की कोशिश करते हैं, एक तो जल्दी याद हो जाता है, एक उसमें कॉन्सेप्ट्स जो है वो बेहतर क्लियर होते हैं और आसानी से उसको रिकॉल भी किया जा सकता है क्योंकि एक इमेज बना होता है इस तरह से. नाउ here are the features and these are the types of cartilage: hyaline, fibrous and elastic. So for the first point is their abundance. Abundance मतलब कि कौन बॉडी में कौन सी कार्टिलेज की जो टाइप है वो ज्यादा मौजूद है हमारे अंदर. So hyaline cartilage is the most abundant cartilage of human beings. Clear? And हमारे अंदर सबसे ज्यादा abundant, ज्यादा तादाद में पाई जाती है. और fibrous भी मौजूद है, abundant है, but elastic it is very less. मतलब कि इसकी क्वांटिटी इन तीनों में सबसे कम है abundance के एतबार से. But most abundant cartilage is hyaline cartilage. इसी तरह से MCQ बन गया आपका. If we talk about the matrix color, इनके जो matrix होता है उसका रंग किस तरह से होता है? So in case of hyaline cartilage, it is bluish white and somewhat transparent. जैसे आपको ये transparent नजर आ रहा है. So bluish white or transparent it's the color of the hyaline cartilage. But as far as the fibrous cartilage is concerned, they are dark yellow in color.
स्ट्रॉन्ग शैलो, डार्क शैलो, ठीक है, जैसे कि वो फैट्स का चर्बी होती है इस तरह से, स्ट्रॉन्ग शैलो कलर, डार्क येलो कलर. And the elastic cartilage, their matrix color is yellow or white. It is yellow or white. If you talk about the structure, the hyaline cartilage, it consists of chondroblasts. तो chondroblast immature cartilage cells कहलाते हैं, and white collagens, और इसके अंदर क्या मौजूद है? White collagen fibers मौजूद हैं. और fibrous ये थोड़ी टफ है और रफ एंड टफ होती है. तो डियर स्टूडेंट्स, इस एतबार से इसके अंदर कोलेजन फाइबर्स की तादाद ज्यादा होती है. क्लियर? और इलास्टिक जो कार्टिलेज है, इससे नेट लाइक टिश्यू होगा. अगर इफ इट इज एग्जामिन्ड अंडर अ प्रॉपर लाइट माइक्रोस्कोप, सो द इलास्टिक कार्टिलेज इट विल अपीयर लाइक अ नेट ऑफ टिश्यू. नेट ऑफ टिश्यू मींस कि इधर से जुड़ा हुआ, इधर से जुड़ा हुआ, इधर से जुड़ा हुआ, एक नेट की अपीयरेंस आ रही है. इफ यू टॉक अबाउट द फंक्शंस, कि इनके फंक्शंस क्या हैं इन कार्टिलेजेस के, सो लेट अस हैव अ लुक. सो हेलाइन कार्टिलेज, इट इज इन्वॉल्वड इन मूवमेंट. मूवमेंट में किस तरह से? क्योंकि ये बोन्स की जो एंड्स होते हैं, लॉन्ग बोन्स की जो एंड्स होते हैं, वहां पर ये मौजूद होती है हेलाइन कार्टिलेज. तो इस तरह से मूवमेंट में हेल्प कर रही है. इट इन बोन ग्रोथ इट इज ऑल्सो प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल. एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक ओपन. फंक्शन इसका कि हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, टू कीप इट ओपन, इसको हर वक्त खोले रखना. यहाँ पर सी शेप्ड कार्टिलेजेस हैं, फिर ब्रोंकाई के अंदर मौजूद है, फिर उसके बाद ब्रोंक्यूल्स में खत्म हो जाती हैं. ठीक है. सो इनका मकसद दैट इज प्रोटेक्शन, ताकि अगर हम बेहोश भी हो जाएं या जब सो रहे हों तो हमारा जो एयर वे है वो ऑब्स्ट्रक्ट ना हो. इसलिए अल्लाह ताला ने हमारे यहाँ से ट्रेकिया से स्टार्ट होकर के नीचे तक जो है ब्रोंकाई तक स्पेशली ये ब्रांचेस दी हैं, which are called as the haline cartilage. Clear? The type of the cartilage. Now the fibrous. So fibrous cartilage, ये इसका मेजर रोल सपोर्ट में. ये हमारी आम तौर पर हमारी जो कमर होती है, मतलब कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, आवर स्पाइन, उसके अंदर मौजूद है. और इसका बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना, इट हैज द एबिलिटी टू बियर और टू एब्जॉर्ब द शॉक. हम भाग रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो आपको पता है कि हमारे जो यहाँ से लेकर पेल्विस से लेकर ऊपर जितना भी हमारा धड़ है, हमारी पूरी बॉडी है, इसका सब, इस पूरी बॉडी का वेट हमारी बैकबोन पे होता है, जिसको हम स्पाइन भी कहते हैं. तो जब हम मूव करते हैं तो ये इस तरह से सपोर्ट एक दे रही है. और शॉक एब्जॉर्बेंस, ठीक है, इट एब्जॉर्ब्स द शॉक. आपको याद है वो द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क. सो इंटरवर्टिब्रल डिस्क में हियर इज एन इंटरवर्टिब्रल डिस्क, आउटर फाइब्रस रिंग होता है उसमें, और उसके सेंटर में मौजूद है बॉल शेप्ड structure. So this is called as nucleus pulposus. और ये बाहर जो रिंग्स हैं, they are called as the annulus fibrosus. Clear? So इस तरह से ये सॉफ्ट सा बॉल है, जब हम मूव करते हैं तो ये बॉल ऐसे कंप्रेस होता है, और ये बाहर जो रिंग है, ये जिसको हम एनुलस फाइब्रोसिस कह रहे हैं, या एनुलर रिंग भी कहते हैं इसको. सो ये रिंग जो इसको अंदर सपोर्ट करके रखेगा. खैर, सो सपोर्ट प्लस शॉक एब्जॉर्बेंस प्लस प्रोटेक्शन है. सो इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम वेरियस इंजरीज एज वेल. एंड इफ यू टॉक अबाउट द इलास्टिक टिश्यू, इट इज अ लिटिल बिट फ्लेक्सिबल. इट ऑल्सो हेल्प्स इन द सपोर्ट. क्लियर? ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह, इसमें नंबर ऑफ कोलेजन फाइबर्स कम है, इलास्टिक फाइबर्स ज़्यादा मौजूद हैं इसमें, जिसके भी हाफ के ऊपर ये इसके अंदर इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टीज आ जाती हैं. नाउ अनदर हेडिंग इज देयर, दैट्स लोकेशन वेयर दीज all these cartilages are present. So if you talk about the haline cartilage, it is present at the ends of long bones, the bronchi, in the larynx, and the tips of the waist and ribs. तो वहां पर मौजूद है हेलाइन कार्टिलेज. लाइक हियर इज अ बोन, so its end has got the structures which are called haline cartilage. Okay, so this is how the ends of long bones and bronchi and larynx, उसको मैंने explain कर दिया. ठीक है. And the ribs,
रिब्स आगे स्टर्नम से आगे आकर अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ दिस हेलाइन कार्टिलेज। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखना है, ठीक है। The ribs. So here is the sternum, and here is a few just for the sake of example. So here is a rib. It is attached to the sternum. So this is sternum, और ये है actually the hairline cartilage. Clear? And now, if you talk about the fibrous cartilage, so it is present in the bones, in the joints, and the knee joints, and especially in the backbone. यहाँ पर मौजूद है. Clear? The fibrous cartilage. And if you talk about the elastic cartilage, so here is the diagram. Vertebra, and again a vertebra having intervertebral disc. Okay, so this is intervertebral disc. Clear? So it is made up of the fibrous tissue or the fibrous cartilage. Now the elastic cartilage, it is present in the pinnae of ear and epiglottis. So जो हम कहते हैं ना कान पकड़ूं आपका कान खींचूं, वो जो कान हम खींचते हैं actually it is just the it's the part of external ear. तो ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल, मिडल एंड इनर। तो एक्सटर्नल ईयर का जो सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज पिना। इट इज मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज एज वेल एज द एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो ग्लॉटिस के ऊपर मौजूद है, एक ओपनिंग है छोटी सी एट द फ्लोर ऑफ द फेरिंक्स, और इसका काम क्या होता है एपिग्लॉटिस का? टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉलिड फूड और द लिक्विड फूड इनसाइड द रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो इसलिए वो बार बार चीज़ें आएंगी, जैसे नीचे प्रेस होगा वापस आ जाएगा, फिर प्रेस होगा फिर वापस आ जाएगा। सो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन द टाइप्स ऑफ कार्टिलेज।